معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ آج ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ سال کے 12 مہینوں کے نام کیسے پڑے۔ عیسوی سال کے 12 مہینوں جنوری، فروری وغیرہ سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن ان ناموں کے پیچھے اور اس کی ترتیب کی کیا حقیقت یا راز موجود ہے، ان سے شاید کم ہی لوگ واقف ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اب سال کے 365 دن اور 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی 30 کا، کوئی 31 کا اور کوئی 28 اور یا کوئی 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے نام کیسے اور کیوں رکھے گئے، ان مہینوں کے نام کس طرح رکھے گئے، یہ داستان دلچسپ پس منظر رکھتی ہے۔ آئیے معلومات میں اضافے کے لیے تاریخ میں اس داستان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخ کی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا شروع سے سال میں 12 مہینے ہوا کرتے تھے؟ یعنی ایسا نہیں ہے۔ 7ویں صدی قبل یعنی 7th century BC سے پہلے سال میں صرف 10 مہینے ہوا کرتے تھے اور سال میں 304 دن گنے جاتے تھے، یعنی سال میں ٹوٹل 304 دن ہوا کرتے تھے، اور سال کا آغاز مارچ سے شروع ہوتا تھا اور دسمبر پر ختم ہوتا تھا، یعنی سال میں 10 مہینے ہوتے تھے جس میں 304 دن ہوا کرتے تھے، اور سال کا آغاز مارچ سے ہوتا تھا اور دسمبر پر ختم ہوتا تھا، یعنی سال کا پہلا مہینہ مارچ اور 10واں اور آخری مہینہ دسمبر ہوا کرتا تھا، اور 10 مہینے اور سال میں پورے 10 مہینے ہوتے تھے۔ لیکن 7ویں صدی قبل مسیح میں یعنی 7th century BC کے اوائل میں پہلے رومی شہنشاہ رومیولس کے جانشین نیوما پاپولس نے قمری سال جو کہ 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا، اسی کی طرح شمسی سال کے اختتام پر 30 اور 29 دنوں پر مشتمل 2 مہینوں کا اضافہ کیا اور انہیں جنوری اور فروری کا نام دیا گیا۔ اس طرح شمسی سال میں 12 مہینے ہونے لگ گئے، مگر سال کا آغاز وہی مارچ سے شروع ہوتا تھا اور فروری پر سال ختم ہونے لگا۔ اس زمانے میں فروری سال کا آخری مہینہ سمجھا جاتا تھا اور اس میں 28 دن ہوتے تھے۔ پھر وقت بدلا اور چیزیں بھی بدل گئی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں یعنی 46 BC میں جنوری سال کا پہلا مہینہ اور فروری سال کا دوسرا مہینہ اور دسمبر سال کا آخری مہینہ قرار پایا۔ ہم یہ جانیں گے کہ ان مہینوں کے نام کس طرح رکھے گئے۔ بات کرتے ہیں جنوری کی۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ کئی صدیوں تک جنوری سال کا 11واں مہینہ رہا ہے اور تب اس کے 30 دن ہوتے تھے۔ 46 قبل مسیح یعنی 46 BC میں رومی شہنشاہ جولیس سیزر نے جنوری میں 1 دن کا اضافہ کیا اور اسے اپنے دیوتا جانس کی نسبت اور عقیدت کے پیش نظر سال کا پہلا مہینہ بنا دیا، اور یوں عیسوی سال کے پہلے مہینے کا نام رومیوں کے ایک دیوتا جانس کے نام پر رکھا گیا۔ جانس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا صرف جنگ کے دنوں میں کی جاتی تھی، امن میں نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ دیوتا کے 2 سر تھے جن سے وہ بیک وقت آگے اور پیچھے دیکھ سکتا تھا۔ اس مہینے کا نام جانس یوں رکھا گیا کہ جس طرح دیوتا اپنے 2 سروں کی وجہ سے آگے اور پیچھے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح انسان بھی جنوری میں اپنے ماضی کے گزرے ہوئے سال اور حال یعنی شروع ہونے والے سال کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ جنوا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دروازہ۔ یوں جنوری کا مطلب ہوا سال کا دروازہ، یعنی جب سال شروع ہوتا ہے۔ ماہ جنوری 31 دنوں پر مشتمل ہونے لگا۔ اب ہم بات کریں گے فروری کی۔ فروری کا نام اہل روم کے مذہبی تہوار فیبریا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ تہوار دیوتا لیو ہیرکس کے اعزاز میں منایا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب فروری سال کا آخری مہینہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا، اور یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سب سے کم یعنی 28 دن اس میں ہوتے ہیں، جبکہ لیپ کے سال میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں۔ چنانچہ لیپ کا سال
366 दिनों पर मुश्तमिल होता है और हर चौथा साल यानी अमूमन हर चौथा साल लीप का साल होता है। इसकी वजह यह है कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार का सफ़र 365 दिन और तकरीबन 6 घंटे में तय करती है, लेकिन 3 साल के दौरान इसका हर साल 365 दिनों का ही शुमार होता है, जबकि चौथे साल में क्वार्टर हिस्सा यानी 6 घंटे जमा करें तो ये 1 दिन के बराबर बन जाता है। यूं 1 दिन ज़्यादा जमा करके ये 366 दिन का यानी लीप का साल कहलाता है। लफ्ज़ फरवरी भी लातीनी ज़बान फेब्रम से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है पाकीज़गी का ज़रिया। यानी इस साल 1 दिन को ऐड करके कन्फ्यूजन को कम किया जाता है ताकि मौसम कैलेंडर के महीनों से आगे ना निकल जाए। अब हम बात करेंगे मार्च के महीने की। किसी ज़माने में इसे साल का पहला महीना होने का भी एजाज़ हासिल रहा है। मार्च का नाम मार्स देवता के एजाज़ में रखा गया है। अहले रूम इसे तमाम देवताओं से ताकतवर समझते थे। इनका अकीदा था कि बारिश, बिजली और गरज चमक सब मार्स देवता के हाथ में है, लिहाजा इस महीने का नाम रोमी देवता मार्स के नाम पर रखा गया। मार्स को उर्दू में मरीख कहते हैं। ये देवता बड़ा ख़तरनाक समझा जाता था। अहले रूम इसे सबसे ताकतवर देवता समझते थे और इनके अकीदे के मुताबिक बारिश, बिजली, बादल और गरज चमक सब मार्स देवता के हाथ में था। यह महीना भी 31 दिनों पर मुश्तमिल है। लफ्ज़ मार्च लातीनी ज़बान का लफ्ज़ मार्टियस से अखज़ किया गया है। इसी लफ्ज़ से सैयारा मरीख का नाम मार्स भी बनाया गया। मार्च के महीने में अमूमन मौसम बहार का आगाज़ होता है। अब हम बात करेंगे अप्रैल की। ये महीना 30 दिनों पर मुश्तमिल है। अप्रैल लातीनी ज़बान अप्रिलिस से बना है। इसका मतलब है खोलने वाला, आगाज़ करने वाला। इस महीने में चूँकि नए पौधों और दरख्तों की नशोनुमा का आगाज़ होता है, चनाचे इसे किसी देवी या देवता के नाम पर नहीं बल्कि बहार के फरिश्ते के तौर पर मंसूब किया गया है। लिहाजा अब हम चलते हैं मई में। यह साल का 5वां महीना है, 30 दिन रखता है। इस महीने में भी बहार के कुछ असरात बाकी होते हैं। लफ्ज़ मई अंग्रेज़ी ज़बान में फ्रांसीसी लफ्ज़ माय से अखज़ किया गया है। ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ मायूस से अखज़ शुदा है। ये भी कहा जाता है कि इस महीने का नाम एक रूवी देवी माया के नाम पर रखा गया। रोमियो के नज़दीक इस वसीओ अरीज़ ज़मीन को देवता ने अपने कंधों पर उठा रखा था। इस देवता के 7 बेटियां थीं, जिनमें माया देवी को सबसे ज़्यादा शोहरत और ख़ूबसूरती की मलका समझा जाता था। अब हम बात करेंगे जून की। इस महीने का नाम भी एक देवी जूनो के नाम पर रखा गया। अलबत्ता बाज़ लोगों के नज़दीक ये नाम रूम के मशहूर शख्स जॉनी लीस के नाम पर रखा गया, जो 9 देवताओं के सरदार जुपिटर की बेटी थी, जबकि जॉनी लीस एक बेरहम और शफ़ाक इंसान समझा जाता था। इस तरह जून का नाम जोनू देवी के नाम पर रखा गया। अब हम बात करेंगे जुलाई की, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग महीना है कि इस महीने का नाम देवी देवता के नाम पर नहीं बल्कि रोम के एक मशहूर हुक्मरान जूलियस सीजर्स के नाम पर रखा गया। एक ज़माने में ये 5वां महीना था, यानी जब साल में 10 महीने हुआ करते थे तो उस वक्त जुलाई 5वां महीना था। जूलियस सीजर्स कदीम रोम का मशहूर शहंशाह था। मशहूर शायर ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर्स पर एक ड्रामा भी लिखा है। इस तरह जुलाई का नाम किसी देवी या देवताओं के नाम पर नहीं बल्कि मशहूर रोमी शहंशाह जूलियस सीजर्स के एजाज़ में रखा गया। ज़माना कबल मसीह में ये साल का 5वां महीना भी था। अब हम बात करेंगे अगस्त की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मंथ है कि साल का 8वां महीना है। इसमें 31 दिन होते हैं। पहले ज़माने में ये साल का 6ठा महीना था, क्योंकि तब साल का आगाज़ मार्च से किया जाता था और साल में कुल 10 महीने होते थे और ये मार्च से दिसंबर तक साल मुश्तमिल होता था। वो इस तरह कि कमरी साल और शमसी साल के महीनों में फ़र्क होता था। तो कमरी साल के तो 12 महीने होते थे, जबकि शमसी साल के 10 माह होते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए 2 महीनों का इजाफा जनवरी और फरवरी की शक्ल में किया गया।
यूं शमसी साल में भी 12 महीने होने लग गए और शमसी साल में इजाफे के बाद अगस्त का नाम एक कदीम रोमी शहंशाह सीजस अगस्टस के नाम पर रखा गया। इस महीने में पहले 29 दिन थे, बाद में जूलियस सीजस ने 2 दिन का इजाफा करके 31 दिनों का महीना कर दिया। पहले रूमी शहंशाह अगस्टस का नाम कुछ और था। जब इसने लोगों के फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम किए तो रोमी लोगों ने इसके इतने गर्विदा हो गए कि इसे अगस्टस के नाम से पुकारा जाने लगा और इस नाम का मतलब है दाना, दानिशमंद। चनांचे इस महीने को अगस्टस के नाम पर अगस्त कहा गया। इस तरह अगस्त का नाम भी एक मशहूर रोमी हुक्मरान अगस्टस के एजाज़ में ही रखा गया। अब हम बात करेंगे सितंबर की। यह महीना 30 दिन का रखता है। लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सेप्ट से बना है जिसका मतलब है 7वां, इसलिए सितंबर का मतलब है 7वां महीना। पिछले ज़माने में यह 7वां महीना था, यानी जब साल मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर ख़त्म होता था, मगर फिर कैलेंडर की नई तरतीब सामने आई तो ये 9वें दर्जे पर चला गया। इस तरह सितंबर के लग़वी माने हुए 7वां। पहले ये साल का 7वां महीना होता था, मगर अब कैलेंडर असर नौ तरतीब होने पर साल का 9वां महीना बन गया। तब से यही नाम चल रहा है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर के महीने की। लातीनी ज़बान में 8 को ऑक्टो कहा जाता है। इसी से साल के 8वें महीने का नाम अक्टूबर रखा गया। अक्टूबर का मतलब है 8वां महीना। इसमें 31 दिन होते हैं। पहले ये 8वां महीना कहलाता था, अब ये 10वां महीना बन गया है। यानी जॉर्जियन कैलेंडर में ये 10वां महीना है और इसके 31 दिन मुकर्रर हैं। अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा सदूर इसी महीने में पैदा हुए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे नाबीनाओं के साथ यकजहती का महीना भी करार दिया है और इसी महीने में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं नवंबर में। इसमें 30 दिन होते हैं और लातीनी ज़बान में 9 को नवम कहते हैं। इसी नाम से महीने का नाम निकला है। नवंबर का मतलब है 9वां महीना। सितंबर को 7वां, अक्टूबर को 8वां और नवंबर को 9वां महीना। उस वक्त कहा गया जब जनवरी और फरवरी के महीने साल में नहीं शामिल थे और बाद में कैलेंडर में इन महीनों के नाम तो वही रहे, अलबत्ता सितंबर 9वां बन गया, अक्टूबर 10वां बन गया और नवंबर 11वां महीना बन गया। इस तरह नवंबर लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नौम से बना है जिसके माने 9वें के हैं। तो पहले ये साल का 9वां महीना होता था, लेकिन बाद अज़ा इसे 11वां महीना करार दिया गया। दिसंबर की बात करते हैं। ये महीना 31 दिन रखता है। लातीनी ज़बान की गिनती में 10 का मतलब है डेसेम। इस लफ्ज़ के मुनासबत से 10वें महीने को दिसंबर कहा गया और अब ये साल का 12वां महीना है। इस तरह दिसंबर के लुग़वी माने डेसेम के हैं, क्योंकि ये पहले साल का 10वां महीना होता था, लेकिन जब से कैलेंडर की असर नौ तरतीब दी गई तो अब ये साल का 12वां महीना बन गया। लेकिन अभी तक इनके नाम वही हैं जो पुरानी तरतीब हुआ करती थी। यानी ये भी एक दिलचस्प कहानी हुई। रूमी कब के अपनी इस देवी देवताओं की मैथोलॉजी को तर्क करके ईसाईयत इख्तियार कर चुके। अब उनके नज़दीक ये सिर्फ किस्से और कहानियों की हद तक रह गए हैं। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वक्त के कैलेंडर पर हर किसी के हिस्से की दास्तान तो रहती है, सूरतें नहीं रहती। लिहाजा हमारी ये कोशिश सिर्फ अपने व्यूवर्स को आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है। उम्मीद है कि हमारी ये मालूमाती कोशिश पसंद आएगी। मोहम्मद मेहताब मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।